So, good morning and welcome. We are starting serially third chapter from 12th book of NCERT Biology. Title is Human Reproduction. Every year, some 3 or 4 questions are there on this chapter. This third chapter is followed by fourth chapter, reproductive health. It also gives 2 questions. It means these 2 chapters, which are closely related, gives some 6 questions in NEET examination. You see, human reproduction chapter that gives 3 to 4 questions. We are starting now. Now listen. Human beings are sexually reproducing organism. So if I say we does sexual reproduction, it means there is formation of gamete, there is syngamy or fertilization, meiosis will occur for gametogenesis, mitosis is also there for embryonic development, variations will be there, the parents and their progeny have little differences. Also the progeny or offsprings of the same parent have some visible differences. This process is complicated, it is very slow, and it has a scope in evolution. तो सर तुम्ही म्हणता की ह्युमन बीइंग आपण जे आहेत हे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करतात आणि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन म्हटलं की त्याचे काही कॅरेक्टर्स असतात. म्हणजे गमीट बनतीलच, फर्टिलायझेशन होणार, मिओसिस होईल, मायटोसिससुद्धा असेल, पेरेंट्स आणि ऑफस्प्रिंग 100% सिमिलर नसतील, त्यांच्यात फरक असेल, एकाच पेरेंटचे जे ऑफस्प्रिंग असतील त्यांच्यातही फरक असेल, दे आर कॉल्ड व्हॅरिएशन, म्हणजे क्लोन्स तयार होणार नाही. ही प्रोसेस खूप कॉम्प्लिकेटेड आहे, खूप स्लो आहे, याच्यात व्हॅरिएशनमुळं इव्होल्यूशनसाठी स्कोप आहे. तो मेरी पहली इम्पॉर्टंट लाइन है कि ह्यूमन बीइंग डज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड ह्यूमन्स आर विविपैरस. सो दैट इज a completely developed young one is given birth, that is viviparous. जो बच्चे को जन्म देते हैं वो विविपैरस रहते, और जो अंडे को जन्म देते जिसमें से यंग वन निकलता, दे आर ओविपैरस. सो सी, human reproduction is sexual and human beings are viviparous. Now, what are the events involved in process of reproduction? So, I have listed the events. म्हणजे सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये काय काय होणार आहे. सो गमीटोजेनेसिस, अ मेल इंडिव्हिज्युअल प्रोड्यूसेस sperm by the process of spermatogenesis called male gamete. A female individual produces ovum or egg or female gamete by the process called oogenesis. So spermatogenesis, oogenesis, that is formation of a male and female gamete called gametogenesis. Now fertilization. The male gamete, that is sperm, approach the ovum present in a fallopian tube, and one of the sperm out of millions will fertilize the ovum and leads to formation of a zygote, a first cell of new life. So this is a second event called fertilization. Now embryogenesis, a long process that starts from one cell zygote and ends with formation of multicellular embryo. It's called embryogenesis. Now, after gametogenesis, fertilization, embryogenesis, the next important event is pregnancy. Pregnancy is a condition of having 1 or 2 live embryo in uterus of a
lady for a span of 266 days from fertilization onward and 280 days from last menstrual period. That is called pregnancy. After completion of gestation or pregnancy, there is parturition, the act of delivering a baby. Then the main event is from mother side, lactation. For first 6 months, the best food, water and the immunity is also provided by the mother, that is by the process called breastfeeding और लैक्टेशन. मतलब कि सर आप कहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एक प्रोसेस है उसमें ये घटनाएं घटेगी. गमेटोजेनेसिस होगा, मेल फीमेल गमेट बनेंगे. फर्टिलाइजेशन होगा, डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा. एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा. प्रेगनेंसी माने जेस्टेशन होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगी. फिर पार्चुरेशन होगा, बच्चे को जन्म दिया जाएगा और फिर माता की तरफ से उसको स्तनपान किया जाएगा फॉर द 6 month. That is called lactation. So these are the events in sexual reproduction. Now see, the chapter is very bulky and the titles are mixed in NCERT. So better to study this chapter under some main titles. मतलब कि आप कहते हैं कि NCERT में इस चैप्टर को थोड़ा सा ऐसा मिक्स करके प्रेजेंट किया है तो दिक्कत होगी, तो हम इसको छोटे छोटे टाइटल्स में डिवाइड करेंगे. तो देखो, आज से हम लोग सिर्फ मेल के बारे में बात करेंगे, ह्यूमन मेल्स. और हमारे टाइटल्स मेल के लिए 4 होंगे. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो एक ऑर्गन सिस्टम है इन ह्यूमन मेल, जो 2 काम करती है. प्रोडक्शन ऑफ मेल गमीट कॉल्ड स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस एंड प्रोडक्शन ऑफ अ मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरॉन. म्हणजे सर आपण जे पहिलं टायटल आज सुरू करणार ते आहे मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम पुरुषों की 9 में से एक ऑर्गन सिस्टम है, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो ऐसे 9वीं सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. तो इसको प्रीफिक्स मेल क्यों लगाया? कभी कोई नहीं कहता कि मेल सर्कुलेटरी सिस्टम, मेल एक्सक्रीटरी सिस्टम, मेल स्केलेटन. नहीं, the 8 organ systems are same for male and female, and the only system that is different is a reproductive system, and hence there is a prefix male. So हमारा पहला टाइटल जो आज शुरू होने वाला है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, समझो हो गई. फिर हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस, जो हमें बताएगा कि 14वें साल माने प्यूबर्टी से लेके एक 60वें साल तक, बुढ़ापे तक, टेस्टिस कैसे बना सकता स्पर्म, वाई इट इज रिगार्डेड एज अ फैक्ट्री ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन, और वो कैसे एक्ट होता है एज अ एंडोक्राइन स्ट्रक्चर और बना के देता है टेस्टोस्टेरॉन, वन ऑफ द एंड्रोजन मेल सेक्स हार्मोन. So after male reproductive system and histology of testes, the next title will be the process of formation of sperms or spermatozoa called spermatogenesis. तो सर ये जो स्पर्म्स बनते हैं वो किस चीज से बनते हैं? सो फ्रॉम द प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया, उनसे मैच्योर स्पर्म बनने की क्रिया को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस. एंड द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस फ्रॉम स्पर्मेटोगोनियम टू द स्पर्मेटोजोआ टेक्स 74 days. म्हणजे
स्पर्मेटोगोनियम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड आणि स्पर्मेटोजुआ। तो ये जो बैच बनी है इसको 74 दिन लगते, वो क्रिया हम देखेंगे। एंड देन फाइनली द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, दैट इज मेल गमीट, और इसे मैंने कहा है मेल डिपार्टमेंट। द पैरेलल टाइटल्स, नंबर 5 फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी, oogenesis and structure of ovum or female gamete और secondary oocyte। तो ये 8 टाइटल हमने पहले लिए हैं, और बाद में फिर 9वां टाइटल आएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल और फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल और ओवेरियन साइकिल। फिर 10वां टाइटल आएगा फर्टिलाइजेशन। फिर 11वां टाइटल आएगा एम्ब्रियोजेनेसिस, दैट इज क्लीवेजेस, ब्लास्टुलेशन, इम्प्लांटेशन, गैस्ट्रुलेशन एंड देन हिस्टोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस। एंड देन फाइनल टाइटल आएगा प्रेगनेंसी, प्लासेंटा, पार्चुरेशन, लैक्टेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप ध्यान दीजिए। देखो, ह्यूमन फिजियोलॉजी सिर्फ मार्स के लिए नहीं पढ़ो, बियॉन्ड एनसीईआरटी, बियॉन्ड द स्टेट बोर्ड बुक हमें जाना चाहिए, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू एवरी वन ऑफ अस। तो सर, आपने कहा द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस, प्रेगनेंसी, पार्चुरेशन, लैक्टेशन। और फिर आप कहते कि हमें जिस सीक्वेंस से टाइटल सीखने हैं, पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस, फिर स्पर्मेटोजेनेसिस, देन स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी, oogenesis, structure of female gamete or ovum, and then the following titles। अब आगे देखो, अब आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहां मैंने लिखा था पहला टाइटल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सुनो, our body has 9 organ system। Out of the 9 organ system, in your 11th book of NCERT, you studied digestive system, human respiratory system, skeletal system, muscular system, endocrine system and nervous system, and excretory system, circulatory system। So 8 systems are in 11th book of NCERT, and the 9th one, that is a reproductive system, comes in a chapter human reproduction। म्हणजे सर, आपलं जे 11वीचं पुस्तक आहे त्याच्यामध्ये जे शेवटचं युनिट येतं, आय थिंक फ्रॉम चॅप्टर नंबर 16, तो त्याच्यामध्ये डायजेस्टिव्ह सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो ये 8 सिस्टम है, और 9वीं हम लोग आज शुरू कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सुनो, ये बाकी जो 8 सिस्टम है, दे आर सेम फॉर मेल एंड फीमेल। Hardly you will find a difference in a kidney of a male and female instead of a size, except a size. Hardly you will notice a difference in a circulation of a male and female। म्हणजे सर, बाकी सिस्टम स्त्री पुरुषाच्या सेम असतात, फक्त रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टमच वेगळी आहे, म्हणून इथं प्रिफिक्स लागलं मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम। तो क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? एन organ system present in
ह्यूमन मेल। और ये जो ऑर्गन सिस्टम है मेल की, ये दो कार्य करती है। प्रोडक्शन ऑफ मेल गमीट कॉल्ड स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस फ्रॉम प्यूबर्टी till old age, and second, formation of male sex hormone, that is androgen. So मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम जी आहे तिचे दोनच कामं आहेत. एक तर सेक्शुअल मॅच्युरिटी म्हणजे प्युबर्टीपासून म्हातारपणपर्यंत स्पर्म बनवायचे, आणि अँड्रोजेन म्हणजे मेल सेक्स हार्मोन तैयार करायचं. तो सर ये जो एंड्रोजन है उसके काम क्या है? एक काम तो है स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा है एंड्रोजन. द मेन एंड्रोजन इज टेस्टोस्टेरॉन. इट डेवलप्स सेकंडरी मेल सेक्स कैरेक्टर. तो सर सेकंडरी मेल सेक्स कैरेक्टर म्हणजे मतलब the wide shoulders, musculature, beard and mustache, that is facial hair, low pitch or masculine voice, aggression, etc. तो ज्याला आपण पुरुषत्व म्हणतो पुरुषाचं, तर ते कोणामुळं असतं? अँड्रोजनमुळं. इट डेव्हलप्स द मेल सेकंडरी सेक्स कॅरेक्टर अँड हेल्प इन स्पर्मॅटोजेनेसिस. ठीक आहे सर. मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम म्हणजे पुरुषाची अशी ऑर्गन सिस्टम जे दोन कार्य करते. प्युबर्टीपासून ओल्ड एजपर्यंत स्पर्म बनवते आणि मेल सेक्स हार्मोन सिक्रेट करते, एंड्रोजन. अब आगे. तो सर अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है तो जाहिर है वो बनी होगी फ्रॉम ऑर्गन्स. मग कुठलीही ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन्स पासून बनते. ऑल दोज ऑर्गन विच आर स्ट्रक्चरली और फंक्शनली इंटिग्रेटेड, लिंक्ड, कनेक्टेड, दे केम टुगेदर अँड फॉर्म्स अ ऑर्गन सिस्टम. म्हणजे असे ऑर्गन ज्यांना एक काम करायचं आहे, म्हणजे फंक्शनली ते रिलेट होतात, कनेक्ट होतात आणि त्याच्यापासून ऑर्गन सिस्टम बनते. तो फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन से ऑर्गन से बनी है? सो इट इज स्क्रॉटम, मीन्स अ पाउच ऑफ अ स्किन hanging downward from abdomen between two thighs in front of anus behind penis. मतलब कि एक त्वचा का पाउच है जो एब्डोमेन से नीचे है, एनस के सामने है, पेनिस के पीछे है और एंटीरियर पार्ट ऑफ थाई में है. दैट इज कॉल्ड स्क्रोटम एंड इट हाउसेस अ पेयर ऑफ टेस्टिस. सो दिस पाउच इज कॉल्ड स्क्रोटम. Next, testes. So this is a pair of testes. तो स्क्रॉटम, टेस्टिस. अब टेस्टिस में होता है स्पर्मेटोजेनेसिस. तो ये स्पर्म टेस्टिस टू आउटसाइड द मेल्स बॉडी ले जाने के लिए एक्सेसरी डक्ट्स चाहिए, गमिट ट्रांसपोर्टिंग डक्ट्स. तो इसीलिए मेरा तीसरा ऑर्गन मैंने लिखा डक्ट सिस्टम. तो स्क्रॉटम, टेस्टिस, डक्ट सिस्टम. अब ये जो डक्ट सिस्टम है उसमें 5 प्रकार की डक्ट आती है. वासा इफ्रेंशिया विच पिक अप द स्पर्म फ्रॉम रेटेटेस्टिस and pour in epididymis. तो in duct system there is vasa efferentia. काय करते? टेस्टिस मधले स्पर्म एपिडिडायमिस मध्ये आणते. नंबर 2 एपिडिडायमिस
it stores the sperm. Here the sperm matures, they get nourished. So vasa efferentia, epididymis, then vasa differentia, that is spermatic duct. So this is vasa differentia. It carries the sperm from epididymis to ejaculatory duct. Now ejaculatory duct, it is formed by union of a duct from seminal vesicle and vasa differentia. म्हणजे सेमायनल वेसिकलची डक्ट आणि वासा डिफरेन्शिया यांच्यापासून बनते इजॅक्युलेटरी डक्ट. देन यूरेथ्रा, तो स्पर्म को वासा इफ्रेंशिया ले गई एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस से वासा डिफरेंशिया ले आए स्पर्म्स को इजैकुलेटरी डक्ट में, इजैकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा एंड यूरेथ्रल मियाटस से शरीर के बाहर. अब ये नीट क्वेश्चन है. द करेक्ट जर्नी और रूट ऑफ द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड बॉडी, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, vasa differentia, ejaculatory duct, urethra, and then to outside through the urethral meatus. एक बार ये रूट थोड़ा अंदर से पूछा था, मतलब टेस्टिस के अंदर से, तो सेमाइनिफेरस टिब्यूल, रेटे टेस्टिस, देन वासा इफ्रेंशिया, देन एपिडिडाइमिस, लाइक दिस. तो scrotum, testis, duct system, penis. So it is a male copulatory organ, as if vagina is a female copulatory organ. तो penis is a male copulatory organ. So this is a male copulatory organ. So this is a swollen tip called glans penis. This is middle elongated cylindrical part called shaft penis, and where it is attached to general body, it is called root penis. तो glans penis, shaft penis, root penis. तो हा मेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन आहे. आता ॲक्सेसरी सेक्स ग्लँड्स. तो accessory sex gland associated with the male reproductive system are seminal vesicle in pair, prostate gland unpaired, bulbourethral gland again pair. तो accessory sex gland associated with the male reproductive system are pair of seminal vesicle, single prostate gland, and pair of Cowper's gland. So which organ forms a male reproductive system? Scrotum, testis, duct system, penis, and accessory sex glands. डक्ट सिस्टम में कौन सी 5 डक्ट आती है? वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंशिया, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा. मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन सी है? पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल, सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड, पेयर ऑफ काउपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. तो ये सारे ऑर्गन बनाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब सुनो, व्हाट इज इंटरनल जेनिटालिया, एक्सटर्नल जेनिटालिया? तो आउट ऑफ organs of male reproductive system, the organ located outside the body are called external genitalia. तो देखो, the penis
and the scrotum. Penis and the scrotum are external मेल जेनिटालिया, बाह्य जननेंद्रिय, क्योंकि वो पुरुष के शरीर के बाहर है। तो फिर अगर पेनिस और स्क्रोटम एक्सटर्नल जेनिटालिया है तो इंटरनल कौन हुए? सर, पेयर ऑफ टेस्टिस, डक्ट सिस्टम अँड ॲक्सेसरी ग्लँड्स. सो फक्त पेनिस आणि स्क्रोटमच एक्सटर्नल जेनिटालिया आहे आणि टेस्टिस, डक्ट सिस्टम आणि ॲक्सेसरी ग्लँड दीज आर इंटरनल जेनिटालिया. तो सर हे सगळे ऑर्गन एकत्र येतात आणि बनवतात मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम, ज्याची दोनच कार्य आहेत: स्पर्म प्रोडक्शन फ्रॉम प्युबर्टी ऑनवर्ड्स टिल ओल्ड एज and secretion of male sex hormone androgen. The main androgen is testosterone. अच्छा, तो फिर ये सारे ऑर्गन में से कौन है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन? तो प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन इज ओनली टेस्टिस, बिकॉज that does both the functions of male reproductive system. What are the functions of male reproductive system? Just I told you, sperm production and androgen secretion, and both the job are done by testis. So only pair of testis is primary male sex organ, and then penis, duct system, scrotum, accessory gland, they are secondary male sex organs. Now हम लोग एक डायग्राम स्केच करेंगे. नाउ लेट अस ड्रॉ द डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. वो इसलिए कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में ये एक लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है. तो लेट अस ड्रॉ इट. नाउ दिस इज urinary bladder. This is a long narrow tube of 20 centimeter length, and this is called urethra. Urinary bladder, urethra. Now this is glans penis, shaft penis, स्क्रोटल सैक्स. तो सर ये स्क्रोटल सैक्स आपने ऐसे क्यों निकाली? हम कभी स्क्रोटम को ऐसे दर्शाते, कभी हम लोग स्क्रोटम को ऐसे निकालते. तो यहां ऐसी दो स्क्रोटल सैक्स क्यों हैं? बिकॉज दिस इज अ सेक्शनल व्यू. हा आपण एक सेक्शनल व्यू घेतोय म्हणून, और यही डायग्राम आपको आपके एग्जाम्स में निकालनी है. सो ये यूरेथ्रा है, ये ग्लांस पेनिस, ये शाफ्ट पेनिस, एंड दीज आर स्क्रोटल सैक्स. ईच स्क्रोटल सैक कंटेन वन टेस्टिस. सो दिस इज टेस्टिस where the sperms are produced continuously from puberty onwards till old age, say 60 years. Now these are vasa effurentia, 12 to 20 fine tiny ductules. They are vasa effurentia. They pick up the sperm from testis. And this is epididymis. So vasa effurentia, epididymis. Now from here this is vas deferens या spermatic duct. तो वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडायमिस आणि वासा डिफरेंशिया किंवा स्पर्मॅटिक डक्ट वो जाती है स्क्रोटम से एब्डोमेन में. इट असेंड्स अप थ्रू
द स्क्रोटम इन एब्डोमिनल कैविटी थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल। देखो कि जैसे ये स्क्रोटम है और ये दो टेस्टिस है और ये एब्डोमेन है, तो यहां से ऐसे, और इस नैरो पैसेज को इंग्वाइनल कैनाल कहते। तो अ पेयर ऑफ टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंशिया। सो नियर द bladder in abdomen, the vasa differentia forms a loop or fold. So ये है vasa differentia of another side. तो this is seminal vesicle. This is duct of seminal vesicles. ही आली आहे वासा डिफरेंशिया म्हणजे स्पर्मॅटिक डक्ट. and vasa differentia and a duct of seminal vesicle join to form ejaculatory duct which opens in urethra. Same from this side. The two joins and forms a ejaculatory duct which opens in urethra. तो यहां पर है prostate gland. So a pair of seminal vesicle, single prostate gland. These are Cowper's gland or bulbourethral gland. Peanut sized, म्हणजे जेवढा शेंगदाणा, मूंगफली जितनी रहती उतनी रहती है काउपर्स ग्लैंड. एंड दे ओपन इन पेनायल यूरेथ्रा. तो सर हा पेनायल यूरेथ्रा काय असतो? देखो, पुरुषों का यूरेथ्रा जो 20 सेंटीमीटर लंबा होता है उसके 3 सेगमेंट है. जिस पोर्शन के आजू बाजू प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये वाला पोर्शन ऑफ यूरेथ्रा जहां प्रोस्टेट ग्लैंड है, दैट इज प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा 2.5 सेंटीमीटर. जितना यूरेथ्रा पेनिस में से पास हुआ है दैट इज पेनायल यूरेथ्रा 15 सेंटीमीटर. और दोनों के बीच में ये बचा है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, दिस इज 2.5. तो प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा 2.5, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा 2.5, पेनायल यूरेथ्रा 15 centimeter. Now the testes are held in position or they are attached to scrotal sac by fibromuscular cord called gubernaculum. तो अगर आप ध्यान दो तो this picture is a sectional view of a male reproductive system. All organs of male reproductive system are present in a pelvic region. म्हणजे पुरुषांच्या मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टमचे सगळे ऑर्गन कुठे असतात? लोअर ॲब्डोमेन मध्ये, म्हणजे पेल्विक रिजन मध्ये असतात. तो ये उसका एक सेक्शनल व्यू है. नाउ लेट अस लेबल. ओके, सो दिस इज testis, a primary sex organ of a human male. This is vasa efferentia, epididymis, vasa differentia, ejaculatory duct, urethra. So vasa efferentia, epididymis, vasa differentia, ejaculatory duct and urethra. ह्या झाल्या 5 एक्सेसरी मेल डक्ट्स. हमने कहा था हाउ
the sperms are transported from testis to outside the body. तो testis to vasa efferentia to epididymis to vasa differentia, ejaculatory duct, urethra, and this is urethral meatus. A opening of urethra is called urethral meatus. This urethra is a common passage for urine and semen. देखो, ब्लैडर में यूरिन आती है, सो यहां समझो पेयर ऑफ किडनी है. सो द यूरिन फ्रॉम किडनी इज कैरीड बाय यूरेटर्स. These are the openings of ureter in bladder. So किडनी में जो यूरिन बनी है वो यूरेटर नीचे लाते हैं और ब्लैडर में वो स्टोर होती है टेम्पररी टिल मैच्योरेशन. So this is another ureter. And this is a opening of ureter in a bladder. म्हणजे हे दोन युरेटर्स आहे जे किडनीकडून थेंब थेंब लघवी आणतात आणि हे ब्लॅडरच्या मागे असतात, म्हणून आपण दाखवले नाही युरेटर. आणि ब्लैडर मागच्या भिंतीवर ब्लैडर के डॉर्सल वॉल पे दो छेद रहते, ओपनिंग्स ऑफ द यूरेटर, दे आर ऑब्लिक इन पोजिशन. तो यहाँ वो खुलते और इसमें ये पूरी यूरिन जमा होती. तो नॉर्मली यहाँ से यूरिन पास करता है पुरुष, बट एट कोइटस इंटरकोर्स, उस समय कॉप्युलेशन के अंतिम क्षण, तो ये जो स्पर्म्स है वो भी यहां से जाते हैं अलोंग विद द सिक्रीशन ऑफ एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड्स. म्हणजे सर नॉर्मली याच्यातनं सू जाते, लघवी जाते, यूरिन पास होती है आणि कोइटस के समय यहां से जाते हैं सीमेन. तो सर सीमेन माने क्या? सुनो, secretion of seminal vesicle called seminal fluid, 60% part of the semen. Secretion of prostate gland, prostatic fluid, 30% of the semen. तो 60% seminal fluid, 30% prostatic fluid, हो गया 90%. ये है जो 10% आए स्पर्म्स, हो गया 100%. and it contain the lubricant secreted by Cowper's gland also, interests. तो that is together called semen. म्हणजे वैसे तो वहाँ से पेशाब जाती है, पर कोइटस के समय, मिलन के समय, इंटरकोर्स के समय वहाँ से सीमेन गया. तो सेमाइनल वेसिकल का 60% सेमाइनल फ्लूइड, प्रोस्टेट ग्लैंड का 30% प्रोस्टेटिक फ्लूइड, 10% स्पर्म एंड सिक्रीशन ऑफ काउपर्स ग्लैंड टुगेदर इज कॉल्ड सीमेन. और इसीलिए यूरेथ्रा को कहते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट. ये नीट क्वेश्चन है. विच इज अ शेयर्ड टर्मिनल डक्ट इन मेल. मेलमध्ये अशी कोणती एक डक्ट आहे जी शेअर केल्या गेली, वाटून घेतल्या गेली बाय एक्सरेटरी सिस्टम अँड रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम. तो देखो ना, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, एक्सरेटरी सिस्टम. वासा इफ्रेंशिया, इपिडिडायमिस, वासा डिफरेंशिया, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, वापस यूरेथ्रा आया. इट्स अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम आल्सो. So this is the sectional view of a male reproductive system. हमने लेबल किया. So number 1 testes, number 2 vasa efferentia, number 3 epididymis, number 4 vasa differentia, number 5 ejaculatory duct, number 6 urethra. अब दिस इज नंबर 7 glans penis. The solan tip of the penis made up of corpus spongiosum only. वो आगे आएगा जब हम anatomy of penis सीखेंगे तब. That is called glans penis. Glans penis is so organ of sexual excitement or pleasure.
So glans penis is homologous to which part in women? So it is clitoris, pseudopenis. अब यहां पर on the glans penis there is loose retractile skin fold. Glans penis is covered with the loose retractile skin fold called prepuce or foreskin. So this is number 8. Now the accessory gland. So seminal vesicles in pair, prostate gland single, Cowper's gland or bulbourethral gland in pair. तो अशी ही डायग्राम तुम्ही काढायची आणि हे सगळे त्याचे लेबल्स आहेत. तो सर इस डायग्राम में पूरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमें नजर आती है. देखो स्क्रोटम, सो दीज आर स्क्रोटल सैक्स. टेस्टिस, अ पेयर ऑफ टेस्टिस. डक्ट सिस्टम, 5 डक्ट. Vasa efferentia, epididymis, vasa differentia, ejaculatory duct and urethra. Penis, so this is shaft of penis, this is glans penis. Accessory sex gland, pair of seminal vesicle, single prostate gland and pair of Cowper's gland or bulbourethral gland. और अब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की काफी अच्छी इंट्रोडक्शन कर चुके कि इट इज अ ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट इन अ ह्यूमन मेल दैट डज 2 जॉब. Formation of sperm by spermatogenesis from puberty onwards till old age and secretion of a male sex hormone called androgen. The main androgen is testosterone. The male reproductive system क्या है? तो सर एक ऑर्गन सिस्टम है, तो जाहिर है वो ऑर्गन से बनी है. तो स्क्रोटम, टेस्टिस, डक्ट सिस्टम, पेनिस, एक्सेसरी ग्लैंड, तो ये 5 ऑर्गन से बनी है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. उन्हें अब सीखना है 1 by 1. लेट मी टेल यू वंस अगेन कि इफ यू गो थ्रू अ स्टेट बोर्ड बुक और एनसीईआरटी बुक, you will find a very concise and limited information about reproductive parts because there is an elementary idea of that. But for future course of education, may it be the several medical courses or even pharmacy, for that purpose every chapter of human physiology, you might be knowing, we have gone beyond the books. तो सर तुम्ही असं म्हणता की स्टेट बोर्डाचं पुस्तक किंवा NCERTच्या पुस्तकापेक्षा खूप जास्त आपण इथं शिकतो आहे, पण याचा अर्थ हे सगळंच काही तुम्हाला बोर्डात लिहायचं आहे किंवा नीट में पूछेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है. तो हम लोग तो आगे के पर्पज से उसको सीख रहे. तो लेट अस स्टार्ट ईच ऑर्गन 1 by 1. तो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विथ स्क्रोटम. So, scrotum, पहला पॉइंट, a pouch of a skin hanging downward from abdomen, in front of anus, behind penis, in between 2 thighs, is called scrotum. तो सर आप कहते कि स्क्रोटम इज अ पाउच ऑफ स्किन, और ये जो पाउच ऑफ स्किन है दिस इज हैंगिंग डाउनवर्ड फ्रॉम एब्डोमेन, इन फ्रंट ऑफ एनस, बिहाइंड द पेनिस, बिटवीन 2 थाइज. तो आपके एनसीईआरटी में लैटरल व्यू भी है, उसमें आप देख सकोगे कि से दिस इज शाफ्ट, दिस इज ग्लांस पेनिस, दिस इज रूट पेनिस
एंड दिस इज स्क्रॉटम, और यहां है एनस, तो दिस इज रेक्टम एंड एनस. तो स्क्रॉटम इज in front of anus, behind penis, hanging downward from abdomen, between the two thighs. Second point, scrotum is divided by vertical partition into scrotal sac. तो सर पहिले तुम्ही म्हटलं की स्क्रोटम म्हणजे एक पाऊच आहे स्किनचा. आता तुम्ही म्हणताय की त्याच्यामध्ये एक व्हर्टिकल पार्टिशन आहे, त्याला सेप्टम स्क्रोटाय म्हणतात. सो द स्क्रोटम इज डिवायडेड बाय अ व्हर्टिकल पार्टिशन इनटू टू स्क्रोटल सॅक्स, लेफ्ट अँड राईट. सो इट इज डिवायडेड बाय partition in two scrotal sac. So they are left and right. ह्या दोन स्क्रोटल सॅक्स आहे. तीसरा पॉइंट, क्या है स्क्रोटल सैक के अंदर? सोचो. तो सर अभी अभी हमने डायग्राम में देखा कि हर स्क्रोटल सैक में एक टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, इपिडिडाइमिस एंड पार्ट ऑफ वासा डिफरेंशिया है. पूरी वासा डिफरेंशिया नहीं, वो तो एब्डोमेन में चली गई ब्लैडर तक. तो पार्ट ऑफ वासा डिफरेंशिया. सो ईच सैक हैज वन टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, epididymis and part of vasa differentia or spermatic duct. So it has testis, vasa efferentia and part of vasa differentia. अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट, the skin of scrotum is hyperpigmented, highly wrinkled and covered with coarse hair. तो सर जैसे नॉर्मल त्वचा होती है वैसे वो त्वचा नहीं है, नहीं. हाइपर पिगमेंटेड माने डार्क कलर्ड, हाईली रिंकल्ड, उस पर सल पड़ी है, सुरकुत्या पडलेल्या आहे, एंड कवर्ड विथ अ कोर्स हेयर. उस पर डेन्स हेयर तो नहीं है, स्पार्स हेयर्स है, विरळ केस असतात. सो दिज आर द स्पार्स हेयर्स. सो द स्किन इज हाइपर पिगमेंटेड, हाईली रिंकल्ड, कवर्ड विथ कोर्स हेयर्स. तो पहला पॉइंट क्या था? Sir, scrotum is a pouch of a skin hanging downward from abdomen in front of anus behind the penis. It is divided by vertical partition into two scrotal sac, left and right. Each scrotal sac has one testis, vasa efferentia, epididymis, part of vasa differentia. The skin of scrotum is hyperpigmented, highly wrinkled, covered with coarse hairs. Next, पांचवा point. The scrotum in male is homologous to labia majora in female. मतलब कुदरत ने जैसे पुरुषों में स्क्रोटम दिया है तो लगभग वैसा एक ऑर्गन महिलाओं में है, और उसकी तुलना की जा सकती विद द लॅबिया मॅजोरा. म्हणजे सर तुम्ही असं म्हणता की पुरुषांना जसं निसर्गाने स्क्रॉटम दिलेलं आहे तसल्याच प्रकारचं ऑर्गन हे माता भगिनींमध्ये असते, महिलांमध्ये असते, आणि त्याला म्हणतात लॅबिया मॅजोरा. मग काय असतात लॅबिया मॅजोरा? मग ते आपण फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टमच्या वेळेस बघूया डिटेलमध्ये की
pair of thick, fleshy, large skin folds which encloses one more pair of skin fold. तो लॅबिया मेजोरा म्हणजे काय? तर अ पेयर ऑफ लार्ज थिक फ्लेशी स्किन फोल्ड जो अपने अंदर छिपाते हैं वन में मोर पेयर ऑफ द स्किन फोल्ड. सो ये जो लैबिया मेजोरा है और ये अंदर है लैबिया माइनोरा. और ये जो वर्टिकल डिप्रेशन है मतलब ये वाला, दिस इज वेस्टिब्यूल. तो ये लैबिया मेजोरा एंड स्क्रोटम आर होमोलॉगस. हाउ कम? तो सर, in both the case the skin is hyperpigmented, highly wrinkled and covered with the coarse hair, and hence it is homologous structure. Next, अगला point, the scrotum contain special smooth muscle. Smooth muscle is the muscle which is not under will control. Mere by thinking we cannot contract or relax it. So the scrotum contain or it is lined with special smooth muscle called dartos tunic muscle. म्हणजे सर स्क्रोटमच्या आतमधून एक स्पेशल स्मूथ मसल असते, ते आपल्या वशमध्ये नसते, विल कंट्रोलमध्ये नसते. तिला म्हणतात डार्टॉस ट्यूनिक मसल. करती क्या है? सुनो. इन कोल्ड अँड सेक्शुअल एक्साइटमेंट डार्टॉस ट्यूनिक मसल कॉन्ट्रॅक्ट अँड reduce the size of scrotum so that the testes are pulled near the body for warmth. म्हणजे सर कड़ी ठंड या सेक्शुअल एक्साइटमेंट के वक्त डार्टॉस ट्यूनिक मसल सिकुड़ती है जिससे स्क्रोटम की साइज छोटी होती और टेस्टिस शरीर के पास आ जाते हैं, उन्हें गर्मी मिलती है शरीर से. सो दिस इज द सिचुएशन during the cold and sexual excitement. And in hot climate, माने जब कड़ी गर्मी है, the dartos tunic muscle expand and the scrotum became pendulous. गर्मी असेल तर डार्टॉस ट्यूनिक मसल होतात एक्सपांड आणि हा स्क्रोटम होतो पेंडुलस म्हणजे लटकतो और टेस्टिस चले जाते एब्डोमेन से दूर. इट मीन्स दे मेंटेन प्रॉपर टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस. दे हेल्प इन थर्मोरेग्युलेशन. पर सर ये नहीं समझा. सुनो, ये जो पेयर ऑफ टेस्टिस है इनमें होता है स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस इज टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोसेस. इट रिक्वायर अ टेम्परेचर लोअर देन एब्डोमिनल कैविटी by 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लेस. माने पुरुष के एब्डोमेन के अंदर जो भी टेम्परेचर रहता है, तो सर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड. तो फिर टेस्टिस को टेम्परेचर चाहिए उससे 2 या 2.5 डिग्री कम, मतलब 34.5 या 35 डिग्री चाहिए उसको. तो इसीलिए तो वो एब्डोमेन से बाहर आए हैं. मतलब ये जो एब्डोमेन है उनसे टेस्टिस को बाहर निकाला और उनके लिए जो पाउच बना मैमल्स में उसे कहा है scrotum. So dartos tunic muscle maintain temperature. That is, they are helpful in thermoregulation because the testis require a temperature less by 2 to 2.5 degree than abdominal cavity. Next, आगे. The cavity of scrotum
is called vaginal सीलोम. मतलब स्क्रोटम में जो भी कैविटी है, हॉलोनेस है, दैट इज वजाइनल सीलोम. इट्स वेरी स्ट्रेंज because when we pronounce something like vagina, so it pretend towards female, but that's true. The cavity of scrotum is called vaginal coelom, and it is filled with a fluid called hydrogel. Next, the abdominal cavity and scrotal cavity. Say, now this is abdomen and this is scrotum. So abdominal cavity and scrotal cavity. Scrotal cavity is vaginal coelom. So they are connected by abdominal cavity and scrotal cavity are connected by a narrow passage, and this narrow passage is called inguinal canal. So this passage is inguinal canal. So scrotal cavity and abdominal cavity are connected by inguinal canal. Next, now what is the function of scrotum? तो सर वो तो एविडेंट है कि उसके अंदर 2 टेस्टिस है, तो इट प्रोटेक्ट द पेयर ऑफ टेस्टिस फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरी एंड दे मेंटेन द टेम्परेचर लोअर देन एब्डोमिनल टेम्परेचर बाय 2 to 2.5 degree less for spermatogenesis. So this is every detail of the scrotum. Now let us recall. A pouch of skin hanging downward from abdomen in front of anus behind the penis is called scrotum. It is divided by vertical partition into 2 scrotal sac, left and right. Each scrotal sac has 1 testis, vasa efferentia, epididymis, part of vasa differentia. The skin of scrotum is hyperpigmented, highly wrinkled, covered with coarse hair. The scrotum in male is homologous to labia majora in female. The scrotum is internally lined by special smooth muscle called dartos tunic muscle. This dartos tunic muscle help to maintain lower temperature. They are meant for thermoregulation. The cavity of scrotum is called vaginal coelom and it is filled with the fluid called hydrogel. The scrotal cavity and abdominal cavity are connected by a narrow passage called inguinal canal. And the last but not least, the scrotum protect the pair of testes from mechanical injury and they provide a lower temperature to the for spermatogenesis. कितना कम? 2 से 2.5 degree as compared to that in abdominal cavity. So this is all about scrotum. अब हम बात करेंगे about pair of testes. First point, pair of testes are present in scrotum. So they are present in scrotum. Second, testes are primary male sex organ. So sir, if testes are primary, then scrotum, duct system, penis, accessory gland, they are secondary male sex organ. So testes are primary male sex organ. Third, so pair of testes are mesodermal in origin.
जैसे कि हार्ट इज मेसोडर्मल, पेयर ऑफ किडनी इज मेसोडर्मल, all muscles are mesodermal. So testes they are mesodermal in origin. Next, अब देखो, each testis is oval shaped and measure 4 centimeter by 3 centimeter by 2.5 centimeter and it weighs 10 gram. तो सर, pair of testis is present in scrotum. It is a primary male sex organ. They are mesodermal in origin. Each testis is oval shape, अंडाकृति, और उसकी लंबान है 4 सेंटीमीटर, उसकी विड्थ है 3 सेंटीमीटर और उसका मोटापा, थिकनेस, जैसे किताब का थिकनेस होता है. सो द थिकनेस इज 2.5 सेंटीमीटर एंड इट वेव्स अबाउट 10 ग्राम. नेक्स्ट, टेस्टिस आर एब्डोमिनल इन ओरिजिन. मीन्स in fetal life, the testes were formed in abdomen, somewhere near the kidney, lumbar region, and they descend down into scrotum before birth. म्हणजे सर, तुम्ही असं म्हणता की हे जे 2 टेस्टिस स्क्रोटममध्ये असतात ते ॲक्च्युअली फीटल लाइफमध्ये, गर्भावस्था में वो पेट में बने थे जी, और वो नीचे उतरे थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल बिफोर बर्थ, समवेयर अराउंड 7 months ऑफ द इंट्रायूट्राइन लाइफ. तो लेट मी एक्सप्लेन. सो दिस इज स्क्रोटम and this is abdomen. So somewhere here the testes were formed. So they are abdominal in origin. And they descend in scrotum through inguinal canal before birth. मतलब वो बने थे पेट में, नीचे उतरे हैं, स्क्रोटम में अब परमानेंट है, और वो उतरे थे जन्म से पूर्व. और किस जगह से वो नीचे आए? तो सर, एब्डोमिनल कैविटी और स्क्रोटल कैविटी में जो गैप है दैट इज कॉल्ड इंग्वाइनल कैनाल, वहां से वो नीचे उतरे थे. अलॉन्ग विथ दैट वासा इफ्रेंशिया, देन एपिडिडाइमिस, उनके साथ उतरे थे. तो दे आर एब्डोमिनल इन origin. Now, what is the proof? Someone will ask that testes are present in scrotum and you said they are abdominal in origin. What's the proof? The proof is that any abdominal organ has a peritoneal cover on it. And the testis has one cover called tunica vaginalis, which is a peritoneal cover, and that's the proof. म्हणजे टेस्टिस पोटात बनले याचा काय सबूत? तो बघा, पोटात जो कोणता ऑर्गन असतो ॲब्डॉमेनमध्ये त्याच्यावर पेरिटोनियल कवर असतंच, आणि टेस्टिसला एक जे बाहेरचं पार्शल कवर आहे ते पेरिटोनियल ओरिजिनचं आहे, ज्याचं नाव आहे ट्युनिका वैजिनालिस. आणि हा सबूत है इस बात का कि वो पेट में बने थे, क्योंकि देयर कवर कॉल्ड ट्यूनिका वैजिनालिस इज, सो इट इज पेरिटोनियल इन ओरिजिन. नेक्स्ट, आगे, टेस्टिस इज कनेक्टेड टू द स्क्रोटल सैक. So, testis is connected to the scrotal sac by fibromuscular cord called gubernaculum. So, they are connected to scrotal sac by gubernaculum. Next, each testis
is nothing but a coiled mass of 600 to 900 seminiferous tubule. मतलब आप कहते कि ये जो पुरुष का टेस्टिस रहता है उसमें स्प्रिंग जैसे वायर है जी, क्वाइल्ड वायर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. उनकी तादाद है 600 से 900. सो seminiferous tubule 600 to 900. It is the structural and functional unit of the testis. जैसे कि किडनी कंसिस्ट ऑफ 1.2 मिलियन नेफ्रॉन, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल. तो जिस ट्यूब में यूरिन बने वो यूरिनिफेरस, और जहां सीमेन या स्पर्म बने वो सेमाइनिफेरस. तो seminiferous tubule or crypt 600 to 900 in number are present in a testis. So the structural and functional unit of the testis is seminiferous tubule. और ये आपको अच्छे से समझेगा इन हिस्टोलॉजी. मतलब कि सर पुरुष के टेस्टिस के अंदर 600 से 900 कॉइल्ड वायर लाइक स्ट्रक्चर है कॉल्ड सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल. नेक्स्ट, टेस्टिस contain endocrine cells and hence it is able to produce a hormone. तो टेस्टिस के अंदर कुछ एंडोक्राइन सेल्स भी है. हाँ, you will came to know in histology. They are called Leydig's cell or interstitial cell. लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल कुठे असतात, काय असतात ते पुढच्या हिस्टॉलॉजीच्या लेक्चरमध्ये होईल. पण त्याच्यामध्ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल असतात आणि लेडिक सेल्स किंवा इंटरस्टिशियल सेल, और ये देते हैं टेस्टोस्टेरॉन, दैट्स अ मेल सेक्स हार्मोन एट प्यूबर्टी 7 मिलीग्राम पर डे. और ये हार्मोन लाता है फिजिकल चेंजेस एट प्यूबर्टी इन द मेल कॉल्ड मेल secondary sex character, musculature, aggression, facial hair, low pitch voice, like this. Now, last but not least, function of pair of testes. तो प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन आहे, दोनों काम करते हैं वो. तो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी ऑनवर्ड and produce a male sex hormone androgen. One of the androgen is testosterone. So they are double functioning organ. Sir, अभी अभी आपने कहा कि pair of testes are formed in abdomen and they descend down in scrotum before birth. म्हणजे टेस्टिस पोटात बनले होते गर्भावस्था में और वो नीचे इंग्वाइनल कैनाल से आ बसे इन स्क्रोटम. तो जब वो उतर गए बिफोर बर्थ तो ये इंग्वाइनल कैनाल हो गया क्लोज. और अगर ये ओपन रहता था तो फिर अ स्मॉल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन may have protruded into the scrotum leading to inguinal hernia. म्हणजे बघा, 2 टेस्टिस 7व्या महिनी गर्भावस्थेमध्ये खाली उतरले, ज्या रस्त्याने ते आले तो इंग्वाइनल केनाल, तो नंतर बंद होतो. पण समजा उघडा राहिला तर तो सर उघडा जर राहिला तर त्याच्यात स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोट्रूड होतं, घुसतं, आणि त्याच्यामुळे स्क्रॉटमची साईज वाढते. त्याला इंग्वाइनल हर्निया म्हणतात. मग ते ऑपरेशन करावं लागेल. मतलब कि वो स्मॉल पार्ट, वो जो इंटेस्टाइन का है वो ऊपर करके यहाँ पे मेज डाली जाती है. इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस सिलेबस. यहाँ मैं जो बताना चाहता उसे सुनो. समटाइम द टेस्टिस फेल टू डिसेंड एंड वो अटक जाते हैं समवेयर, या फिर एक उतर जाता और एक रह जाता. तो समटाइम द टेस्टिस फेल टू डिसेंड इन स्क्रॉटम.
and they remain in abdomen. That is called क्रिप्टोऑर्किडिझम. तो क्रिप्टो म्हणजे हिडन, छुपे, लपलेले. ऑर्चिड्स म्हणजे टेस्टिस. तो सर ऐसा होता है? हाँ होता है, बट दैट इज नॉट अ सीरियस इशू. आफ्टर अ स्मॉल इंसिजन गिवन इन इंग्वाइनल कैनाल, तो दे कैन बी ब्रॉट डाउन आल्सो. बट इफ दे रिमेन इन एब्डोमेन देन द कॉन्सिक्वेंसेस आर नॉट गुड. क्या होगा सर? टेस्टिस जर एब्डोमेनमध्येच राहिले तो उनको लोअर टेम्परेचर ना मिलने से स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा और कैंसर भी हो सकता है. तो फेल्यूर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इन स्क्रोटम इज कॉल्ड क्रिप्टॉर्किडिझम. तो लेट अस रिकॉल. Pair of testes are present in scrotum. They are primary male sex organ. They are mesodermal in origin. Each testis is oval shaped 4 by 3 by 2.5 and weighs 10 gram. The testis is abdominal in origin and they descend through inguinal canal into scrotum before birth. They are then connected to the scrotal sac by fibromuscular cord called gubernaculum. Each testis contains 600 to 900 coiled wire-like structure called seminiferous tubule. So the testis is nothing but 600 to 900 seminiferous tubule का एक coil mass है. तो seminiferous tubule is structural and functional unit. It also contains certain endocrine cell called Leydig cells, Leydig cell or interstitial cell. When these cells are stimulated by the pituitary hormone LH, luteinizing hormone, or interstitial cell stimulating hormone, they produce testosterone. तो ये नीट क्वेश्चन है. The source of hormone testosterone in testis is Leydig cells. The function, they are double functioning organ, sperm production and giving male sex hormone testosterone, and failure of testis to descend into the scrotum, and if they remain in abdomen, that disorder is called cryptorchidism. So that's it for the two organ, scrotum and testis. In the next lecture, I will talk for duct system, penis and accessory glands. Thank you.